Hello, children. Today I'm going to start with the topic. This was the disintegration of USSR. This is the continuation topic of the Soviet system. In the last video, I explained you what was the Soviet system. Now there is the USSR, the Soviet system that was collapsed. USSR was disintegrated. In December 1991, Russia, Ukraine and Belarus, these three major republics of USSR, they declared that USSR is disbanded. Disband हो गया है. It was a union on 15 republics, but now it is disbanded. अब ये disband कर दिया गया है. It means USSR was disintegrated. And after that there were the different points were there. There was the Communist Party, which was the main political party, the only political party, Communist Party of the Soviet Union. This was also banned. उस पर बैन लगा दिया गया था. And after the post-Soviet state, जो post-Soviet जो disband होने के बाद USSR के disintegration के बाद जो countries independent हुई थी, जो republics independent हुए थे, in those countries, in these republics, there was the capitalism, or we can say the democracy and liberty. These were the main ideas were followed here. So that was the total system was changed in these countries. And when this was, the USSR was disintegrated. Now there was the question, who will be the successor of USSR? Successor, why the successor is needed? Because USSR was holding a permanent seat in the United Nations Security Council. Who is going to take that? So it was decided Russia, which was the major country in this USSR, इस यूनियन में सबसे बड़ी अगर ये पावरफुल कंट्री कहें, that republic was Russia. तो Russia was accepted as the successor of USSR. रशिया को जो इसका सक्सेसर बनाया गया. एंड इस सक्सेशन में उसे क्या मिला? इट इनहेरिटेड द परमानेंट सीट ऑफ द इन द सिक्योरिटी काउंसिल. यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सीट थी वो यूएसएसआर की जगह अब रशिया को दे दी गई. एंड आफ्टर दैट इट वाज आल्सो डिसाइडेड कि जितने भी कमिटमेंट्स, जो ट्रीटीज़ यूएसएसआर ने बाकी कंट्रीज़ के साथ किए हैं, उसे भी कौन फॉलो करेगा? That is again Russia. And it will be the only nuclear state in this region. जो USSR के जो nuclear weapons थे वो भी सारे रशिया के पास रहेंगे. So that is, in this way we can say this Russia was accepted as the successor of the USSR. Now question is raised is, why did the Soviet Union disintegrate? इतनी बड़ी पावर थी जो सोवियत यूनियन, जो यूएस को चैलेंज कर रहा था, वर्ल्ड पावर थी, तो ये एक तरह से यहाँ पर डिसइंटीग्रेट या ये सिस्टम कोलैप्स क्यों हो गया? सो देयर आर द फ्यू फैक्टर्स which are responsible for its disintegration. Number one, we can say that is the internal weakness of this system, because the bureaucracy became authoritarian. Political and economic institutions, they were not answerable to the people, they were not accountable to the people, and these people were unhappy with the system, and that is why gradually it goes towards the disintegration. सोवियत इकोनॉमी यूज मच ऑफ इट्स इकोनॉमी इन द आर्म्स रेस. बहुत सारे जो है इसके रिसोर्सेज जो थे सोवियत इकोनॉमी ने अपने कहाँ लगाए थे? आर्म्स रेस में, टू मैच विद द यूनाइटेड स्टेट्स आर्म्स रेस में. सो इसकी वजह से क्या हो गया कि यहाँ पर सोवियत यूनियन में जो शॉर्टेजेस हो रही थी, जो बैकवर्डनेस आ रही थी, इट मेड द पीपल अनहैप्पी. इससे लोग जो थे वो खुश नहीं थे. तो ये भी एक रीज़न था फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर. And number two is the people of this region, they became knowledgeable about the advancement of the Western countries. Many years they were being told by the authorities, they were told by the political party, the Communist Party, this system is the best. This system is the best in the world. But now the people came to know this system is not the best. Other countries in the West, they are economically, they are better than them, they are developing, they are more developed than this region, and this also made people unhappy. और इसकी वजह से भी जो है कि लोगों ने इस सिस्टम को चेंज करने की डिमांड की. दिस सिस्टम वाज नॉट फुलफिलिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ
ऑफ द पीपल, लोगों के जो है एस्पिरेशंस जो है उसको वो जो है फुलफिल नहीं कर रहा था. एंड द सोवियत सिस्टम ऑल्सो बिकेम स्टेगनेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पॉलिटिकल सेंस. दोनों में जो है कि ये स्टेगनेंट हो गया था. अब इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी. ऑर्डिनरी पीपल वर नॉट हैप्पी एंड देर वॉज द करप्शन ऑल्सो. तो इसलिए जो है कि जो लोग जो थे इस सिस्टम से खुश नहीं थे. द पार्टी ब्यूरोक्रेट्स गेन मोर प्रिविलेजेस. जो पार्टी के लोग थे दे वर गेटिंग मोर प्रिविलेजेस एंड ऑर्डिनरी पीपल्स वर not happy. The ordinary peoples were not getting the freedom to speech even. तो इसलिए ये सिस्टम में धीरे धीरे से जो है कि ये इस तरह से होता गया कि ये वीक होता गया एंड एट लास्ट इन 1991 it was disintegrated. And some part this can be the Gorbachev reforms. Gorbachev, Mikhail Gorbachev, who became the General Secretary of the Communist Party of Soviet Union in 1985. उन्हें जो है कि सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने थे. ही वांटेड टू इंट्रोड्यूस सम ऑफ द रिफॉर्म्स सो दैट ये सिस्टम को बचाया जा सके, ये सिस्टम कोलैप्स ना हो. और इसे बचाने के लिए मिखाइल गर्बाचोव ने क्या किया था, कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे. बट ही वॉज फेल्ड. He could not match with the aspirations of the people एंड द ब्यूरोक्रेसी. दोनों के बीच में जो भी है ये मैच नहीं कर पाया. द पार्टी मेंबर्स वर नॉट हैप्पी विद दैट बिकॉज वो उनको ब्यूरोक्रेसी का जो टाइट कंट्रोल था उसे वो लूज़ करना चाहता था. ऑन द अदर हैंड वट एवर फ्रीडम वॉज गिवन टू द पीपल दे वर नॉट हैप्पी कि जितना उनको फ्रीडम चाहिए था ये उतना नहीं था. तो दोनों ही साइड से जो है कि ये मिखाइल गर्बाचोव के जो रिफॉर्म्स थे वो भी उसे पूरा नहीं कर पाए और जिसकी वजह से जो है हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम जो है ये कोलैप्स हो गया. सोवियत यूनियन वॉज डिसइंटीग्रेटेड. सोवियत यूनियन जब ये डिसइंटीग्रेट हो गया है देन what was the डिसइंटीग्रेशन के हम कहेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे. what were the effects of that. हमने कॉजेज तो देख लिए कि हाँ जी इस वजह से ये सिस्टम डिसइंटीग्रेट हो गया. ठीक है, ये सिस्टम जब डिसइंटीग्रेट हो गया है उसके बाद ऑल दीज 15 रिपब्लिक्स, अब यहाँ पर किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम था, किस तरह से उन्होंने अपने जो इकोनॉमिक सिस्टम को रिवाइव किया या क्या सिस्टम उन्होंने फॉलो किया. सो देयर वाज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस डिसइंटीग्रेशन. तो इस कॉन्सिक्वेंसेस में अगर हम कहेंगे तो ब्रॉडली 3 टाइप्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस वर देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये कहेंगे सो एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन बिकॉज कोल्ड वॉर वॉज बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर. नाउ यूएसएसआर इज नॉट देयर. यूएसएसआर वॉज डिसइंटीग्रेटेड. अब यूएसएसआर जब है ही नहीं तो कोल्ड वॉर किसके साथ होगी. तो इसलिए यहाँ पर कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन जो थी वो खत्म हो गई. एंड ऑफ कोल्ड वॉर. डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर लेड टू द एंड ऑफ कोल्ड वॉर. जैसे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ कोल्ड वॉर भी ऑटोमेटिकली खत्म हो गई. तो अब ये जो था दिस आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट जो था ओवर द इशू विच पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट विच इज़ द बेटर वन. नाउ दिस इशू वॉज नो मोर इशू फॉर टू डिस्कस एंड अब ये नहीं होना था कि हाँ भी कौन सा सिस्टम जो है ये बेटर होगा. And there was the second this was the first point is that means whatever the consequences of disintegration. सबसे पहला हो गया कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन जो थी वो खत्म हो गई. नंबर 2 द रिलेशन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो रिलेशंस थे कंट्रीज़ के वो भी चेंज हो गए. अब चेंज कैसे होंगे. दोज कंट्रीज वर विद द यूएसएसआर. नाउ दे वर फ्री. Now they were free to choose any of the political system. Some of them they wanted to be the part of NATO. They wanted to join the European Union. वो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहते थे. और यहाँ पर जो क्या में यूरोपियन कंट्रीज जो थी उन्होंने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया एंड आफ्टर दैट they became the part of NATO also. But some of the Central Asian countries they wanted to take the advantage of their location. अब जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से दे वांटेड टू मेक द टाइज विद द कंट्री द यूएसएसआर मीन्स जो फॉर्मर कंट्रीज थी उनके साथ भी रिलेशन रखना चाहते थे. एंड दे ऑल्सो वांटेड टू मेक द रिलेशन विद द यूएस चाइना एंड द अदर कंट्रीज. वो अपने जोग्राफिकल लोकेशन का फ़ायदा उठाना चाहते थे, एडवांटेज लेना चाहते थे. तो ये आ गया मीन्स द पावर रिलेशन जो थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अब वो चेंज हो चुके थे. एंड नंबर 3 इज द एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक meant emergence of many new countries. ये न्यू कंट्रीज थी ना जो भी ये रिपब्लिक इंडिपेंडेंट हुए थे. these were the new republics.
न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज़। तो अब इनकी ये चॉइस थी कि ये किस तरह से ये करेंगे कि हाँ जी अपने यूएसएसआर को तो छोड़ दिया अब इन्होंने, यूएसएसआर तो है ही नहीं, तो ये कहाँ जाएंगे, चाहे ये मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाएं, चाहे ये जो है कि ये नेटो को ज्वाइन करें, या इसके साथ ही वो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करें। तो 3 तरह के इसके हम कहेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। फर्स्ट इज द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन, नंबर 2 पावर रिलेशंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स दे वर चेंज्ड, and number 3 is the end of Soviet bloc meant the emergence of many new countries in the world. अब ये नहीं है कि these countries were not existing, these were existing, but now they are the independent countries. अब ये independent republics थे, पहले ये USSR का part थे। So in this video I try to explain you what was the main factor responsible for the disintegration of USSR, causes of disintegration, and after that consequences. This is very important part of the chapter, causes and consequences of the disintegration of USSR. Hope this topic is clear to all of you, and revise your syllabus carefully. Thank you.